Very good morning to everyone. This is the sum we will do now. Mr. Rajendra keeps his books by single entry. So this is the owner of the business is Mr. Rajendra, who keeps his book by single entry. He requests you to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2017 and the balance sheet as on the date. From the analysis of the cash book, the following transactions have been revealed. So these are the information which has been extracted, which has been found out from the cash book. मतलब डेटर से फर्म हैज रिसीव्ड 1,50,000. सो डेटर ने पे किया है तभी कैश मिला है. रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स व्हेन द फर्म sold goods on cash immediately on cash basis. Dater matlab kya? Money will be received in future, but cash sales matlab what? That you are selling the goods and getting the money immediately. 90,000. Bank charges is an expense. P&L account. Drawing कैपिटल में से माइनस करेंगे. वेज क्या ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग मीन्स पर्सनल ड्राइंग मीन्स व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस राजेंद्र took the money business money for his personal use, it is drawing. तो ये हम कैपिटल में से लेस करते हैं. फिर वी हैव वेजेस पेड. तो वेजेस कम्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. Salaries paid comes in the profit and loss account debit side. General expense come in the profit and loss account debit side. Paid to creditors, इससे creditor कम हो जाएगा. Creditors are our suppliers from whom we have purchased goods or raw materials on credit. So when we pay them, what happens? Our debt, the money which we have to give in the future, we will pay whenever possible. So the creditors will be reduced. 90,000. Then what we have? Following where the balances, 1/1/2017, 31/12/2017 opening balance and closing balance of assets and liability. So कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया है. स्टॉक ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है. डेटर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस. फर्नीचर बोथ द balances are same, opening as well as closing. फिर premises is there, it is same. Creditor opening balance, closing balance. बैंक बैलेंस ओपनिंग इज अ क्रेडिट. क्रेडिट मतलब बैंक बैलेंस लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे. क्रेडिट मीन्स bank overdraft. Bank balance in the credit means negative बैंक बैलेंस. नेगेटिव बैंक बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस जो हम लाइबिलिटी में लिखते हैं, मतलब ये इतना पैसा बैंक में नहीं है, इतना पैसा हमें बैंक को रिटर्न करना है. मीन्स it is 24,000 which we have to pay to the bank. It's a liability to us that we have to pay the bank 24,000. And क्लोजिंग बैलेंस इज अ डेबिट बैंक बैलेंस. दैट इज हमारा इतना 14,550 बैंक में है, इतना पैसा. And then cash balance is there 1,000 opening and 1,450 is the closing. Now we have to depreciate furniture by 5%. There is a adjustment. So what we can do? Furniture adjustment, dater में that is bad debts का adjustment, and capital में we have to calculate interest on capital at 5%. So let us start this sum. Now. क्या करेंगे? In the books of Rajendra, trading and profit and loss account.
So I don't want this space. So I will remove it first. So in the books of Rajendra, trading and profit and loss account for year ended 31st December 2017. Let us prepare we want two column. We want two column. Name it particulars rupees particulars rupees. So इसके बाद what we want बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट में यही पूछा है हमसे. They have asked us to prepare both this two things. They've asked us to prepare. So ये बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स नहीं होता. Okay, this is also ready. Now what accounts हमें कैश सेल तो दिया है पर क्रेडिट सेल नहीं दिया, क्रेडिट परचेसेस भी नहीं दिया. तो हमें कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा? हमें डेटर्स अकाउंट. क्या हमें सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि कितना क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल नहीं दिया तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. हमें परचेसेस भी नहीं दिया, क्रेडिट परचेस कितना है दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन. एंड कैश बुक हमने देखा, कैश बुक जो है इट इज अ एक्सट्रैक्ट एनालिसिस ऑफ कैश बुक. तो कैश बुक भी हमें एक बार प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज प्रॉपर कैश बुक नहीं दिया है. सो कैश बुक में बैंक कॉलम भी है तो कैश बैंक अकाउंट लिखती हूँ मैं बिकॉज आई विल प्रिपेयर एवरीथिंग इन वन कॉलम. बिकॉज वी डोंट नो ना कितना कैश में पे किया, कितना चेक में पे किया, इज नॉट गिवन. तो हम दो अलग कॉलम कैश और बैंक का सेपरेट नहीं बना सकते बिकॉज एग्जैक्टली वी डोंट नो what receipt is made we got on cash, what receipt we got on check, what payment we made on cash, what payment we made through check. Nothing is given, so we can't prepare a separate column of cash bank because even though we have been given cash balance separately and bank balance separately, still we cannot distinguish between the two that यहाँ पे जो payments है इसमें कौन सा cash है कौन सा check है, that is not given clearly, so we can't prepare two columns separately. Now all the accounts have been prepared. Let us start with our sum. So received from debtors, डेटर से पैसा मिला. उससे पहले ना आई वुड लाइक टू प्रिपेयर दिस बैलेंस शीट की ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस इजीली. वैसे तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, नो प्रॉब्लम. सो बट आई लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द this one balances. So one more thing we have to prepare. No, capital balance is given.
सो नो नीड टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट, बिकॉज हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि कैपिटल नहीं दिया रहता, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर कैपिटल नहीं दिया तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। बट यहाँ पे कैपिटल बैलेंस इज गिवन, यहाँ पे कंप्लीट बैलेंस शीट इज गिवन। सो हम, और नहीं तो हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ नो यूज व्हेन कैपिटल इज गिवन। तो यहाँ पे हमें कैपिटल बैलेंस दिया है। सो कैपिटल इज हाउ मच, 2,11,000। इसके बाद स्टॉक इज गिवन। तो स्टॉक हमें ट्रेडिंग अकाउंट में काम आता है। ओपनिंग वाला स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक is how much, 54,000, and closing stock is how much, by closing stock is 61,320। इसके बाद what is given, इसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक एक और जगह आता है, क्लोजिंग स्टॉक, it comes here also, okay ना। then we have स्टॉक के बाद डेटर, डेटर में देयर इज एडजस्टमेंट। सो डेटर इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, बट कौन सा फिगर, 1,80,000। क्यों, क्योंकि क्यों क्योंकि ये जो डेटर ओपनिंग है और क्लोजिंग है, हमें क्यों दिया गया है, ताकि हम डेटर अकाउंट प्रिपेयर कर सके। डेटर इज अ असेट, डेटर इज अ असेट, असेट हैज अ डेबिट बैलेंस। सो हम डेबिट साइड में लिखे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, असेट मत, डेटर इज अ असेट एंड असेट हैव अ डेबिट बैलेंस। तो कितना है अमाउंट, 1,32,000। So I will write here 1,32,000, and closing balance is always on the opposite side, by balance carried down. How much is the debtor closing balance? 1,80,000. So I write here 1,80,000. फिर हमारे पास क्या है, डेटर के बाद फर्नीचर, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन का। सो आई विल राइट हियर फर्नीचर 6,000। देन वी हैव बिजनेस प्रीमाइस, दैट इज 90,000। तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आई विल राइट बिजनेस प्रीमाइसेस 90,000। फिर हमारे पास है क्रेडिटर 48 एंड 33,000। क्रेडिटर, एक चीज मैंने यहाँ पे डेटर लिखा ना, तो यहाँ पे आता है क्रेडिटर, क्रेडिटर, और कौन सा वाला, 31/12/2017 का बैलेंस शीट बना रहे। क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर कम इन द लाइबिलिटी, creditor come in the liability, it is 33,000. Creditor is 33,000, and then हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर दोनों है, एंड वी नीड टू प्रिपेयर द क्रेडिटर अकाउंट ऑल्सो। सो क्रेडिटर अकाउंट, creditor is a asset or a liability, please tell me. Creditor is a asset or a liability? Creditor is a liability. So liability has a credit balance. Liability has a credit balance. So by balance brought down, लाइबिलिटी को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स का क्या बैलेंस है, 48 and 33,000. So I will write here opening balance is 48,000. So मैं यहाँ पे 48,000 लिखूंगी, and closing balance is always in the opposite side.
to balance carried down till nothing has been told बैलेंसर्स के बारे में, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि लाइबिलिटी है तो क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस रहेगा। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है। इसके बाद आफ्टर क्रेडिटर्स वी हैव बैंक बैलेंस and cash bank balance opening balance is in the credit side। बैंक बैलेंस कैश बैंक में आ जाओ, कैश बैंक अकाउंट में जो बैंक बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इज द बैंक बैलेंस? सी बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में 24,000, बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड में 24,000 क्रेडिट दिया यहाँ पे क्रेडिट। एंड इसके बाद जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में है, सम 14,550 क्रेडिट साइड, सो डेबिट साइड में है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ऑपोजिट क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, डेबिट बैलेंस का मीनिंग क्या है? इट विल हैव अ क्लोजिंग बैलेंस इन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस carried down, by balance carried down, how much is the amount? 14,550, 14,550. I will again explain you this. See here, बैंक बैलेंस क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस हमेशा जो साइड ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो मैंने क्रेडिट साइड में लिखा, बट क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ना वो हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है। मतलब अगर डेबिट बैलेंस है तो वो क्लोजिंग को हम क्रेडिट में दिखाएंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस को हम, अगर क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, अगर क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है तो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बिकॉज क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज शोन इन द ऑपोजिट साइड। अगर डेबिट बैलेंस है तो क्लोजिंग, अगर डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा, अगर क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है तो हमें डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंसेस आर ऑलवेज शोन इन द ऑपोजिट साइड। क्लोजिंग बैलेंसेस जो भी बैलेंस होता है उसके ऑपोजिट साइड में दिखाते हैं। तो सेम वे आई होप यू ऑल आर क्लियर। इसके बाद हम कैश बैलेंस लेते हैं 1,000 and 1450। तो कैश बैलेंस, हम कैश मीन्स असेट, असेट मतलब यहाँ पे बैलेंस रहेगा डेबिट साइड में, टू बैलेंस बॉट डाउन कितना है 1,000, और क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज इन द, क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज इन द credit side, closing balance is always in the credit side, opposite side, debit के opposite side में it is how much। जो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, आई विल राइट इट क्योंकि दो बैलेंसेस है, आई विल राइट इट बैंक एंड कैश। बैंक इज 14,550 एंड कैश का क्लोजिंग बैलेंस इज 14,550। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या अमाउंट मिलेगा? जस्ट ऐड बोथ ऑफ देम, 14,550 प्लस 1450 is equal to 16,000, is equal to 16,000. So now after this, what we will do, go to the question
ये बैलेंस शीट का किया। अब कैश बैलेंसेस जो जो है एक्सट्रैक्ट दिया है वो उसका इफेक्ट देते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स मतलब पैसा आ रहा है, मींस कैश बुक के रिसीट साइड में होगा, कैश बुक के रिसीट साइड में होगा, पैसा मिल रहा है तो लिखेंगे टू डेटर्स व्हाट इज द अमाउंट। जब पैसा मिलता है तो डेबिट, पैसा पे करते तो क्रेडिट 1,50,000। आई विल राइट 1,50,000। इसके बाद वी हैव after debtor we have received from cash sales, received from cash sales। तो कैश सेल से भी पैसा, एक और इफेक्ट दे देते हैं ना पहले डेटर का। यहाँ पे हमने लिखा कैश बुक में पैसा मिला डेटर से, टू डेटर, तो इसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट भी तो रहेगा, डेटर कम हो जाएगा जब डेटर का पैसा मिलेगा। तो टू डेटर, डेटर अकाउंट में टू का ऑपोजिट डेटर में बाई में लिखेंगे एंड नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट कैश बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है 1,50,000, 1,50,000 दोनों इफेक्ट दे दिया। डेटर कैश बुक में बोला है डेटर से पैसा मिला, तो डेटर के अकाउंट में इधर डेबिट में तो डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट में बाय कैश बैंक। Then what we have after this? After this we have received from cash sales 90,000। तो अगेन पैसा मिला, रिसीव हुआ, सो डेबिट साइड में लिखेंगे टू, कैसा मिला ये पैसा, टू कैश सेल्स, सेल्स किया कैश में 90,000। तो इस क्या सेल्स किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे बाय सेल्स एंड उधर नीचे लिखेंगे कैश, कैश में कितना सेल किया 90,000। दोनों इफेक्ट दे दिया। अब हम जाएंगे अगेन कैश बुक का जो दिया है, बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस इज अ एक्सपेंस, मींस पैसा बाहर गया है, तो कैश बुक में हम लिखेंगे पेमेंट साइड में बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस 450, बाय बैंक चार्जेस 450। तो यहाँ लिखेंगे P&L अकाउंट में वी विल राइट बैंक चार्जेस, डेबिट साइड में आएगा एक्सपेंसेस 450। इसके बाद अगेन गो टू द क्वेश्चन, आफ्टर बैंक चार्जेस ड्रॉइंग इज देयर 12,000, ड्रॉइंग से भी पैसा बाहर जाता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स 12,000, बाय ड्रॉइंग्स 12,000। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, या ऐसे लिखती हूं मैं लेस ड्रॉइंग्स, कैपिटल में से ड्रॉइंग लेस करते हैं, शो इन द ब्रैकेट 12,000। इसके बाद हमने दोनों इफेक्ट दे दिया, कैश बुक में भी ड्रॉइंग्स लिखा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में भी दे दिया। नाउ वी हैव वेजेस पेड 6,000, तो वेजेस पे करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, बाय वेजेस 6,000। वेजेस किधर आते हैं, wages comes in the trading account to wages 6,000। इसके बाद सैलरीज फॉर स्टाफ पेड, तो वेजेस के बाद सैलरी पे किया 45,000 पे करेंगे तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा, पेमेंट साइड में। सो
हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय सैलरीज, कितना अमाउंट 45,000, 45,000। सो सैलरी किधर आता है, P&L अकाउंट में, टू सैलरीज 45,000। इसके बाद क्या है, सैलरी के बाद जनरल एक्सपेंस 47,550। जनरल एक्सपेंस ऑल्सो पेमेंट साइड में आएगा। जनरल एक्सपेंस पेड दिया है। जनरल एक्सपेंस, हाउ मच इज द अमाउंट, 47,550, 47,550। दूसरा इफेक्ट P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में दूसरा इफेक्ट जनरल एक्सपेंस का, टू जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस 47,550। then we have after general expense paid to creditors 90,000। क्रेडिटर को पे करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 90,000, बाय क्रेडिटर्स 90,000 एंड क्रेडिट, इधर बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिटर इज अ क्रेडिट बैलेंस, जब पे करेंगे तो क्रेडिटर कम होगा, तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट, बाई क्रेडिटर इधर हो जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट 90,000, 90,000। so this is done, all the cash transactions are done। now बैलेंस शीट का भी हो गया। now तीन एडजस्टमेंट्स बाकी है। depreciate furniture by 5%, so I will go to the balance sheet। फर्नीचर को depreciate करो, लेस depreciation 5%, तो 6,000 का 5% इज हाउ मच, 6,000 का 5% इज 300, 300। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5%, 300। सो आउटर कॉलम में कितना आएगा, 300 माइनस करने के बाद 5,700। फिर डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट दे दो P&L अकाउंट में, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, हाउ मच इट इज, 300। इसके बाद सेकेंड इफेक्ट, बैड डेट्स में 6,000 का इफेक्ट निकालो, लेस प्रोविजन, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। I want it in one line। ओके, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना दिया है, 6,000। तो माइनस करेंगे 6,000 तो कितना आएगा, 1,80,000 माइनस 6,000 इस 1,74,000। और इसका दूसरा इफेक्ट विल कम इन द P&L account to bad debts provision। This is a provision, so यहाँ पे लिखेंगे 6,000। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट निकालो 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 5%, 2,11,000 इज द कैपिटल, उस पे 5% इंटरेस्ट निकालो, कितना आता है, 2,11,000 इंटू इंटरेस्ट ऑफ 5%,
it is 10,550. So ये हो गया. तो ये एक्सपेंस है. भले द ओनर इज गेटिंग इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, बट इट्स एक्सपेंस टू द बिजनेस. बिजनेस को तो इतना पैसा देना है. तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मच इट इज? 10,550. अभी देखो ना परचेस आया है ना सेल्स आया है, सारा एडजस्टमेंट हो गया. ऑल एडजस्टमेंट्स डन. हमने कैश ट्रांजैक्शन भी लिखा, बैलेंस शीट का भी इफेक्ट दे दिया, एडजस्टमेंट एवरीथिंग डन, बट वी हैव नॉट क्लोज द अकाउंट्स. तो पहले डेटर अकाउंट को क्लोज करो, हमें क्रेडिट सेल मिल जाएगा. सो डेटर अकाउंट क्रेडिट इज हैवी, तो इसको ऐड करो. हाउ मच यू आर गेटिंग? 3,30,000. 3,30,000. तो डेटर कैसे, यहाँ पे देखो डेटर का डेबिट साइड कैसे इंक्रीज होता है? डेटर इंक्रीज होता है व्हेन वी सेल बाय क्रेडिट. तो ये क्या है? टू क्रेडिट सेल्स. दिस इज द बैलेंस. सो क्रेडिट सेल्स मिल गया. तो जाके बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में नहीं, क्रेडिट सेल किधर आता है? क्रेडिट सेल कम्स हियर इन द ट्रेडिंग अकाउंट. सो क्रेडिट सेल्स मिला हमें 1,98,000. सो आई विल राइट हियर 1,98,000. इसको दोनों को ऐड करो. हाउ मच यू आर गेटिंग टोटल सेल्स? दोनों को ऐड करो, 2,88,000. इसके बाद नाउ क्लोज द क्रेडिटर अकाउंट. क्लोज द क्रेडिटर अकाउंट. I can see debit is heavy. 90 plus 33,000 is 1,23,000. 1,23,000. और अपना क्रेडिटर का भी इंक्रीज होता है. क्रेडिटर का क्रेडिट साइड में डिफरेंस है. तो क्रेडिटर इंक्रीज होता है जब हम क्रेडिट में परचेस करते हैं. व्हेन वी परचेस बाय क्रेडिट, सो हाउ मच इज द अमाउंट डिफरेंस? क्रेडिटर का कितना डिफरेंस आ रहा है? 75,000. सो 75,000, मेरी विन 1 मिनट, 75,000 को हाईलाइट कर देती हूँ. दिस इज बैलेंस. बैलेंस. सो ये परचेसेस किधर, क्रेडिट परचेसेस किधर आएगा? अगेन इट विल कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट. टू परचेसेस 75,000. इट इज 75,000. यहाँ पे कैश परचेस कुछ नहीं है, तो ब्रैकेट में वी विल हैव टू राइट इट इज क्रेडिट परचेस. क्रेडिट, कैश इज नॉट देयर. सो दिस इज डन. अब एक और अकाउंट है, कैश बैंक अकाउंट. इसका तो सब चीज लिखा है ना हमने. कुछ बचा है क्या इसका? इसका कुछ भी नहीं बचा. ये तो टैली होना चाहिए. Let us see whether this is tallying. So इसको तीनों को ऐड करो. 1,000 plus 1,50,000 plus 90,000 कितना होता है? Add all the three, 1,000, 1,50,000 and 90,000. It is coming to 2,41,000. Same way, add all these. 24,000, 450, 12,000, 6,000, 45,000, 47,550 and creditors का 90,000, then 16,000. Is it coming 2,41,000? So we can see that both the sides of the cash bank account is same because everything we have included. ऊपर सिर्फ एक एनालिसिस दिया था, एक समरी दिया था. यहाँ पे हमने कंप्लीट बैलेंस शीट प्रिपेयर किया.
यहाँ पे हमने कंप्लीट बैलेंस शीट आई एम वेरी सॉरी, कंप्लीट कैश बुक प्रिपेयर किया। यहाँ ऊपर सिर्फ एक्सट्रैक्ट कैश बुक का दिया था, यहाँ पे हमने कंप्लीट कैश बुक प्रिपेयर किया, चेक किया कि कुछ मिसिंग तो नहीं है, कुछ कैश बुक का में कुछ डिफरेंस तो नहीं है। इट इज प्रॉपर, नो डिफरेंस, एवरीथिंग इज गिवन, बैलेंसेस से लेके एवरीथिंग इज गिवन। सो इसके बाद अगर इसके बाद वी विल सी, नाउ हमने सब कुछ यहाँ पे सब तीनों अकाउंट्स को क्लोज कर दिया। नाउ हमारे लिए क्या बाकी है, हमारे लिए बाकी है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट को टैली करना। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड दोनों को, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है देखो, 2,88,000 plus 61,320, I am getting 3,49,320, 3,49,320. Are you also getting same? What is the gross profit? What is the gross profit? To gross profit carried down. कितना मिल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन? 2,14,320। ये इधर लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बॉट डाउन 2,14,320, 2,14,320. Now see whether it's a profit. I can see it's a profit. देखो ये इतना है और यहाँ पे कुछ भी अमाउंट ज्यादा नहीं है। सो सी व्हाट इज द नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन क्या आ रहा है? 45,000, I mean 450, 45,000, 47,550, 300, 6,000, 10,550, ये सब माइनस करो, ये पूरा 6 आइटम्स माइनस करो 2,14,320 से। हाउ मच यू आर गेटिंग? 1,04,470, करेक्ट। तो ये जो अमाउंट मिला इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट करेंगे। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट? Amount of net profit is 1,04,470, 1,04,470। तो मुझे बताओ माइनस करके कितना आएगा? ये तीनों को ऐड करेंगे, कैपिटल, इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट, तीनों को ऐड करेंगे एंड ड्रॉइंग को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हाउ मच यू विल गेट? 3,14,020, 3,14,020. Now see what you are getting, total of balance sheet liability side. Balance sheet liability side is 3,47,020. And now asset side is how much? 90,000 plus 61,320 plus 1,74,000. यहाँ पे हमने एक चीज नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? कैश बैलेंस नहीं लिखा है। कैश बैलेंस देखो, कैश बैलेंस में हमारे पास कैश बैलेंस कितना है, जरा कैश बुक में देखो, कैश बैलेंस कितना है? 1,450। कैश बैलेंस है 1,450। एक और चीज नहीं लिखा, बैंक बैलेंस भी नहीं लिखा। बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस है 14,550, given in the question both the things, 14,550, 14,550. तो अभी देखो हाउ मच यू आर गेटिंग, आर यू गेटिंग 3,47,020? ये सबको ऐड करो, यू विल गेट 3,47,020.
सारे 1 2 3 4 5 6 को ऐड करो, you will get 3,47,020. With this, our sum is complete. Balance sheet got tallied and sum is complete. Thank you everyone.